Hello everyone, this is Dr. Jyoti Girish. I hope you all are fine and taking care of yours. Guys, thank you so much for appreciating my last video, which was very first one. And thank you so much for sending your messages, your opinions, your feedback, your suggestions, which would be very helpful in my future videos. I would be coming up with all those topics which you want me to cover. And thank you so much. I want to thank all those people also who came up with their open heart and soul and shared their concerns and their phase. They share about their views and what exactly they are going through. I hope my sessions help you all and you would be fine. Do take care of yours. Moving further, guys. Last video we talked about emotional well-being and how it is very helpful in taking care of emotional well-being and how it helps in maintaining our mental health. So today we would be talking about social well-being, which is again a component of mental health. But before I start, I want to request you all to please like my videos if you like it, subscribe to my channel and press that bell icon so that whenever I will be uploading anything new, you'll get notification about that video. So let's start with the social well-being, guys. जब हम बात करते हैं social well-being की, I just don't want to take it as a chapter. As you all know, this is a platform where we would be sharing our experience and our ideas, our understanding about the concept. So when we talk about social well-being, what exactly is social well-being about? Social well-being होती क्या है? So guys, this is just a state of being comfortable, healthy and happy. इसी को तो कहते हैं well-being. जब हम comfortable होते हैं किसी अपने zone में, when we are relaxed, हमारा thoughts, हमारे ideas बिल्कुल sync में होते हैं, हम दिल से और हमारा heart and soul बिल्कुल peace में होता है. That happiness is your well-being. So जब हम social well-being की बात करते हैं तो बहुत ही clear components होते हैं social well-being की. अगर हम बात करें तो like our social interaction, your connections, communication and your interpersonal relations. These are the key factors which play a great role in maintaining your social well-being. How social connections and interactions are important. जब हम, as we all know, we are human. And we are human. When we say we are human, we are social animals. We can't lead in an isolated world and alone. अकेली दुनिया में हम नहीं जीते हैं. We need people around. We want people to talk to. We need friends. We need relatives. So that's how we lead our life in a group. हम community living के आदी होते हैं. So that's how our social interaction with people is very important. हम आइसोलेटेड वर्ल्ड में ना रहते हुए लोगों के बीच में लोगों के साथ रहें. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जब हम बात कर रहे थे इमोशनल वेलबींग की, तभी हम यही बात कर रहे थे कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें. इन दिस इंटरेक्टिव पेस पे जब हम बात कर रहे हैं, आइडिया वही है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ उठे बैठे, अपने सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले इंसानों के साथ हमें अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करें. सो सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट हम बहुत एवरीवन इज हैविंग देयर ओन ग्रुप एंड हमारा जो ग्रुप होता है वो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से होता है. इफ वी आर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट और मोटिवेटेड kind of a person, or if we whatever kind of personality we are possessing, we pick similar kind of people around. Similar way में if a person who is of destructive mind, negative thinking, उनका picking भी उन्हीं के किस्म के, उन्हीं के अकॉर्डिंग जिनके साथ उनको अच्छा लगता है उस किस्म के लोगों के साथ उनका ग्रुप बनता है. So that's how social interaction begins. जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली वहां कम्युनिकेशन हो गई. ऐसा हो नहीं सकता कि हम विदाउट कम्युनिकेशन हम इंटरेक्ट करेंगे. सो दैट कम्युनिकेशन प्ले great role during that interaction. Guys, we need to be very clear
अबाउट आवर आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमें क्या अच्छा लग रहा है, या किस किस्म के हमें बात करनी है, या हमें किस किस्म के अवेयरनेस से जुड़ना है. all those things are through that communication only. So we need to be very clear communicator also. Communication plays a great role. दुनिया के किसी भी रिलेशन के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप है तो दैट रिलेशन गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दैट गैप. सो वी नीड कम्युनिकेशन. आपको कुछ अच्छा लगता है आप कम्युनिकेट करिए, आपको कुछ बुरा लगता है आप कम्युनिकेट करिए. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे. सो कम्युनिकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल in maintaining healthy relation. Third component is interpersonal relations. Guys, again, in society, we build our relations. यहां मैं एक छोटा सा चंक लेना चाहूंगी. जब एक छोटी सी लाइफ इस दुनिया में इंट्रोड्यूस होती है तो एक सोशल प्रोसेस से गुजरती है. फर्स्ट कम्युनिकेशन, फर्स्ट इंटरेक्शन और फर्स्ट रिलेशन जो डेवलप होता है उस बेबी का, उसकी मदर के साथ होता है, एंड देन विद फादर एंड अदर रिलेटिव्स. एंड धीरे धीरे जब वो दुनिया में आगे बढ़ता है वो बेबी, तो वो टीचर्स, अपनी फॉर्मल एजुकेशन उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती है. वो टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, पीयर्स, एंड देन इट ऑल सेंस स्टेज बनती है. देन मोर फ्रेंड्स एंड मोर ग्रुप्स में आप इंट्रोड्यूस होते हैं. लेटर ऑन आप और आगे बढ़ते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में घुसते हैं. देन देयर आर colleagues, there are peers, and there's a lot, competition is there. There's lots of other things are associated during that journey. So ये जो process है, इसमें आप हर थोड़े से step के बाद एक relation develop करते हैं. So that relation जो होता है वो बहुत important होता है. Here I'm not talking about formal relations. Formal relation actually itself depicts formalities. Those comprises with formalities. जहाँ पे आपको थोड़े से efforts लगाना पड़ते हैं, थोड़ा one-sided चलना पड़ता है. I'm not talking about all those relations. I'm talking about your fair, real world relation. So be communicative, be interactive to your relations, and try to maintain healthy aspect in your relations. Guys, जब मैं यहाँ real relation की बात कर रही हूँ तो I also want to share about these days. जब pandemic ने hit किया तो हम सब एक दूसरे के साथ communicative रहे. टेक्नो वर्ल्ड ने हम लोगों को हेल्प किया, और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया की वजह से, एक वर्चुअल दुनिया की वजह से हम अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने फैमिली के वेलबींग के बारे में जान सके. And that's how technology is a boon in our life. But technology के मुरीद हो जाना, I would say that's not at all a good idea. दशकों पहले जब सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था तो यही सोच के साथ हुआ था शायद कि हम दूर दराज बैठे हुए फ्रेंड्स जो बचपन में बिछड़ जाते हैं, हम एक दूसरे से आई थिंक लाइफ में फिर कभी मिल नहीं पाते थे. और ये हमारे पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होगा, नॉट अस. और बरसों बाद वो कभी मिलते भी होंगे तो अगेन वो उनका लक है. बट पुराने जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था तो आई डोंट थिंक सो कि वो कभी इस तरीके से इंटरेक्ट कर पाए. बट सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म जब डेवलप होने लगा तो आइडिया यही था कि लोग दूर दराज कभी जो एक दूसरे से पर्सनली नहीं मिल पाते हैं, एटलीस्ट वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें. फ्रेंड्स को पता रहे कि हाँ वो दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है. रिलेटिव्स जो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वो किसी से इस माध्यम के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए थे. कजन्स, सिबलिंग्स. एंड आज न्यूक्लियर फैमिली के दौर में तो ये हाल है कि 12th के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो देन पेरेंट्स के पास ये वर्चुअल दुनिया ही है जिससे कि वो अपने बच्चों का चेहरा देख पाते हैं. बट अगेन आई वुड से जहां इसका बहुत प्लस है तो इसके माइनस पे भी मैं बात करना चाहूंगी. आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ट्राई एंड मेंटेन योर रियल वर्ल्ड एंड रियल रिलेशंस. गिव वेटेज टू योर रियल रिलेशंस. हम छोटी छोटी बातों को और छोटे छोटे ईगोस के वजह से
अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय ना करें। हम ये ना सोचें कि अरे सामने वाले ने तो कॉल नहीं किया, व्हाई शुड आई। कभी खुद एक फोन उठा के सामने से पूछिए कि हाउ यू आर, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इस कंडीशन में ना हो कि आपको कॉल कर रहे हैं। ट्राई एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक स्टेप आगे आपको उन लोगों के लिए बढ़ना है जो कि आपके रियल रिलेशंस हैं, जो आपकी फिक्र करते हैं, जिनके साथ आपको कंफर्टेबल फील होता है, जिनके साथ आपने अच्छे दिन निकाले हैं, जो कि जिनके साथ मिलके आज भी आपको फर्स्ट गो में ऐसा लगता है कि ओह वाओ, आई वॉन्ट दिस पर्सन, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और इसको मैं खोना नहीं चाहता। सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन योर रियल वर्सेस वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज आप कभी भी किसी इमोजी के साथ ठहाके मार के नहीं हंस सकते हैं। अगर आपको हंसना है, आपको खुश होना है, आपको कुछ शेयर करना है, यू वॉन्ट रियल पीपल, you know, you want your friends, you want someone's shoulder to cry. आप जब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, you want somebody very near to you in a real zone. I don't think so कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ कंफर्टेबल फील कर सकते होंगे, बट क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, आप वर्चुअल दुनिया में स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट करते हैं और कभी कभी हम इन स्ट्रेंजर्स से बात करते करते उन्हीं को रियल समझते हैं। तो ट्राई, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, अच्छी बात है, आप अपनी टेक्नोलॉजी को कनेक्शन के लिए यूज करिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज करिए, बट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर रियल वर्सेस वर्चुअल वर्ल्ड, which will definitely help you out in maintaining your personal well-being. Because if आपका प्योर रिलेशन और प्योर इंट्रैक्शन अगर आपके रियल वर्ल्ड में है, तो आई एम श्योर यू विल बी वेरी 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 साउंड एंड यू विल अटेन अ बैलेंस इन योर बोथ द वर्ल्ड्स। सो गाइस, इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ आई विल बी कमिंग बैक इन मोर एंड मोर वीडियोज। आई विल बी टेकिंग मोर ideas from you guys, and I would be coming up with more masala, as we discussed in my very first video, that I'll be talking about much more, and this is about social well-being. That's how we can take care of our social well-being, because this, अगर हमारी social well-being अच्छी है, अगर हम socially अच्छे हैं, sound हैं, तो हम personally भी sound होंगे। हम पर्सनली साउंड है एज एन इंडिविजुअल, तो सोसाइटी भी हमारे साथ साउंड रहेगी। सो डू टेक केयर ऑफ योर्स, टेक केयर ऑफ योर इंटरपर्सनल रिलेशंस, योर कम्युनिकेशन एंड योर रिलेशंस। गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट लाइक माय वीडियोस इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।